May I come in, sir? आइए प्रश्न। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बी कंफर्टेबल। Thank you, sir. बिना नाम बताए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ताकि आपके विषय में से ज़्यादा जानकारी हमको हो सके। Sir, I have done my schooling from Devi Public School, Hehal. Thereafter, I have completed my graduation in geography from St. Xavier's College, Ranchi. So since then, I've been preparing for the civil services examination. This is my second attempt in BPSC and second mains and first interview, sir. Okay. You have opted subject like geography for you, Yes, sir. and you have been having your graduation in geography as well. Yes, sir. So you are well acquainted with the subject geography, I suppose. Yes, sir. Which area of geography, which part you like the most, or you have interest in that area? So one is the population geography and second one climatology somewhere, sir. Can you explain me the rainy season, the rainfall, Yes, sir. and its geographical content for the case of India? Yes, sir. So most of the rainfall in India, sir, is brought by southwest monsoon in the month of July to September, and then in the winter season, the northeast monsoon brings the rainfall in the north of the Coromandel coast, and also the western disturbances brings rainfall to the northwestern part of the India, sir. What is the reason that Cherrapunji is having highest rainfall in the country? So the southwest monsoon is divided into two branches. One is the Arabian Sea branch, and another one is the Bay of Bengal branch. Bay of Bengal branch. So dancing is your hobby. Yes, sir. Which type of dance you normally? So actually, I do dance as an exercise. So basically, so that could be considered as a freestyle dance. No classical dance. You have No, sir. trained yourself. No, sir. Okay. Can you tell me how many classical dance is normally accepted in our Yes, in sir. your context? So there are 8 classical dances in India. Can you name them? Yes, sir. So starting with Bharatnatyam, that is of Tamil Nadu, then Kuchipudi and Mohiniyattam, Kathakali and Mohiniyattam, that is of Kerala, Kuchipudi of Andhra Pradesh, Satriya dance of Assam, Odissi of Odisha, Manipuri dance of Manipur, Kathak dance of Uttar Pradesh, sir. Where do you place the Chhau dance in that? So Chhau dance, Ministry of Culture has recognized Chhau dance, but sir, is it classical dance or folk dance? So that is not considered as a classical dance right now by Sangeet Natak Academy. So that is folk dance. Yes, sir. Okay. What is your option for services? Preferences? So my first preference is BAS, Bihar Administrative Services. Then the second one is the Bihar Police Service. So third one is Assistant Tax Commissioner, sir. Suppose you are SDM of a particular subdivision. You have got a complaint that 2 of your subordinate clerks, they have fought in the office, abusing each other, even have slapped, and that matter has come to you. What action will you take, and how will you solve this problem? So first I'll listen to the matter and verify whether it is authenticate or not. If verified that is an authenticate matter, I would call the seniors, or I would call the juniors, or maybe I'll establish a committee, and then they could identify what is the problem between them, sir. Assistant Tax Commissioner. Yes, sir. So GST. So goods and services tax. So 2016. No. Yes, sir. 101st Constitutional Amendment Act. 101st Constitutional Amendment Act. So 1st July 2017. So I'm not exactly sure, sir. So I'm not very sure. Sir.
So that was value added tax. क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? क्या होता है? सैम बैक का नाम सुना है? No. नहीं सुना? गिफ्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? So indirect tax, sir. गिफ्ट टैक्स, So I'm not very कॉर्पोरेट sure. टैक्स So that is direct tax. क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स So कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में किसने पूंजी पे लाभ है किसने लगाया जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स किसका लगता है? so जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर लगाया जाता है. नो, इन्वेस्टमेंट टैक्स में इन्वेस्टमेंट कौन दूंगा? मैंने प्रॉफिट पर दूंगा. प्रॉफिट पे सर. कंपनियों के लाभांश पर जो टैक्स है उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे ना. यस सर. और एक आता है टैक्स इनकम टैक्स. यस सर. इनकम टैक्स क्या होता है? क्या इनकम टैक्स का स्लॉट इस बार का बजट में? बिहार सरकार की आय के क्या क्या स्रोत है? सर सबसे पहला स्रोत तो है सेंट्रल टैक्सेस से जो डेवल्यूशन आ रहा है. वित्त आयोग की सिफारिश पर. सर 16th फाइनेंस कमीशन. हाँ, उसकी वित्त आयोग सिफारिश पर दिया जा रहा है. यस सर. कितने परसेंट अनुदान वित्त आयोग सिफारिश कर रहा है राज्यों को? सर 41%. 41%. यस सर. कौन सा वित्त आयोग गठित हुआ था? तो 16वां है ये. यस सर. वित्त आयोग जैसी संस्था विश्व में कौन और है? I'm not very sure sir about this. I'm sorry sir. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या? नीति का फुल फॉर्म क्या है? ये नीति आयोग बना हो जाएगा क्या? Sir National Institution for Transforming India. नीति आयोग. Yes sir. तो योजना आयोग का सॉफ्टवेयर अपनी तरह बना दिया गया. Yes sir. बिहार में भी ऐसा कोई आयोग है? So I'm not very sure sir. काफी लोग आगे हैं तुम्हारे. ज्योग्राफी ली है. Yes sir. बिहार का फिजिकल डिवीजन करूं. सर बिहार को वैसे तो 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा जाता है. एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 जिसमें बारिश से ज़्यादा होती है और इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. नहीं, मैं फिजिकल डिवीजन पूछ रहा हूँ, एग्रो डिवीजन नहीं. सर ऐसा फिजिकल डिवीजन बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शिवालिक रेंज है. और फिर सदर्न बिहार में जो हिली एरियाज है और सर होल ऑफ द बिहार फिर प्लेन वाले रीजन में आता है. और सर शाहाबाद वाले रीजन में ऐसा प्लेटू का हिस्सा है. हाँ यस सर. प्लेटू का हिस्सा. यस सर. ये बताओगे कि शिवालिक रेंज किसका पार्ट? सर शिवालिक रेंज सर जो हिमालयन रेंज है वो फर्दर डिवाइडेड है. हिमालयन रेंज का कितना हिस्सा है? सर 3 है. ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक सर. ग्रेटर, मिडिल यस सर. एंड और शिवालिक. शिवालिक. यस सर. तो ग्रेटर हिमालयन रेंज 3 हिम ग्लेशियर का नाम, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, और जिससे विशाल नदियां निकलती. सर ग्लेशियर्स कैलाश माउंटेन रेंज है. कैलाश बेटा ट्रांस हिमालयन हिस्सा है, हिमालयन Yes, हिस्सा sir, yes, नहीं है. आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन भी की हो, यस सर. वो भी सेंट जेवियर कॉलेज रांची से की हो. यस सर. नहीं, हिमालय के भी हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय है. ट्रांस हिमालय के कितने हिस्से हैं? यस सर. बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सतोपंथ ग्लेशियर है, ये सारे ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं. मैं पूछ रहा हूँ हिम ग्लेशियर जिससे 3 बड़ी नदियां निकलती है पश्चिम से पूर्व की, और तीनों नदियां बिहार में बहती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष. सर फिर वहां से सर गंडक एक है नदी. बेटा सबसे पहले यमुनोत्री आएगी, फिर गंगोत्री आएगी, फिर मिलम आएगी. यस सर. मिलम से कोसी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा. यस सर. तीनों बिहार में बहती है, यस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष. यस. ये बताओ कि जम्मू कश्मीर का जो पीर पंचाल क्षेत्र है वो हिमालय के किस रेंज में आता है? सर वो मिडिल हिमालयाज में आता है. मिडिल हिमालय में आता है. अभी
भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ है। कब हुआ है? सर कल या 4 दिन पहले। यस सर कल या परसों 18%। 18% यस सर घटा दिया। यस सर लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि उसने एक मैप जारी किया, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यस और काराकोरम रेंज को लेकर क्या उसने कौन सी अपनाई है? सर इंडिया का होल मैप जारी किया है, जिसमें सर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हमारा हिस्सा बताया है, ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और और उसको काराकोरम सर सारे रेंजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का। यस सर। तो इससे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत और पाकिस्तान पे क्या प्रभाव दिखता है? सर ये क्योंकि एक रिकॉग्निशन मिला है, तो इंडिया जो क्लेम करता है कि पीओके हमारा है, या फिर वहां से अगर किसी तरह का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक क्लेम नहीं करते हैं, हमारा है, बाकायदा हमारी संसद ने पारित किया है, वो हमारा है, हम क्लेम नहीं करते। यस सर पाकिस्तान भी हमारा ही है। सर वहाँ से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहे हैं, या फिर अभी सक्शगाम वैली की बात की गई जो हो रही है, सर वहाँ पे इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख सकता है कि ये हमारा रीजन है और किसी भी तरह का डेवलपमेंट हमारे सोवरेनिटी को। सियाचिन हिम ग्लेशियर जो है वो किस रेंज में स्थित है? सर वो ग्रेटर हिमालयस में है।